Hello everyone. Today we are going to read the poem The Ball Poem by John Perryman for class 10th. John Perryman conveys through these lines that everyone experiences a loss at some point in one's life. It might be the loss of a loved one, or parents, or close relative, a pet, or even some things, materialistic things. Humans have a tendency of getting attached to things, and the loss of things or people close to heart causes grieveness. जॉन बेरीमन का कहना है कि इंसान की ये टेंडेंसी, ये नेचर होता है कि वो चीज़ों से, इंसानों से, जीव जंतुओं से बहुत जल्दी अटैच हो जाता है, और जब उन्हें खो देता है, जब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो वो उदास हो जाता है. But one must not let that pull us down. Loss is an essential and significant experience of one's life. हमें चीज़ों से अटैच हो जाना अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण हम इतने दुखी हो जाएं कि लाइफ में आगे ही ना बढ़ पाएँ, वो गलत है. Most of the time you must have seen when you were in class nursery or in the beginning of the school, आपकी मम्मा क्या करती थी? आपके रबर, आपके पेंसिल, आपके ज्योमेट्री बॉक्स पर आपका नाम लिख देती थी. Why? Because you wanted you to be attached with all these things. आप में belongingness की जो फीलिंग है वो उसे बढ़ाना चाहते थे. You were in nursery, आपको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी आप अपनी चीज़ों को पहचान लेते थे. ये मेरी मम्मा ने लिखा है. This was the thing she was trying to grow in you. In the lines 1 to 4, the poet is asking the reader as to what the boy who has lost his ball should do. Okay, in first 4 lines, he explains a boy is playing near a harbor with his ball. Suddenly the boy loses his ball and it goes jumping merrily into the water. He's not able to take it out. He just rushes behind the ball and he's standing near the water. He is trembling with fear. What to do? How to take his ball out? He's not able to take it out. He's waiting. Somehow the ball will come back, but it is not possible. In lines 5 to 10, he explained that there is no loss for the boy to feel about the loss. For a moment, the poet also thinks of consoling the boy by telling him that he should get better balls to play with. यहाँ जो पोएट है वो बच्चे को ये फील करवाना चाहता है. वो उसे कह सकता है कि हम तुम्हें एक नई बॉल दे देंगे. देयर आर सो मैनी अदर बॉल्स, बट ही डज नॉट डू दैट. वैसा नहीं करता. इफ़ द चाइल्ड हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल गेट्स अनदर वन, he will not have a feeling of belongingness. He will become careless. Let it be. जा रही है, खो रही है, जाने दो. But he wants to make the boy understand the responsibility of belongingness. Connections. The poet feels that it would not be right to disturb the boy at the point of time. The ball is not significant, but its association to the memories of the days is. यहाँ वो बॉल दे सकता है. उसे कह सकता है घबराओ मत, अंदर बहुत सारी बॉल्स हैं, बहुत सी बॉल्स दे देंगे, नई ले आएंगे. लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बच्चे में ये फीलिंग ग्रो करना चाहता है कि वो समझ जाए कि बॉल का खो जाना शायद उसकी केयरलेसनेस थी. अब बच्चा उन मेमोरीज़ को रिकॉल करेगा जो उस बॉल से कनेक्टेड थी. देखिए, आप ये महसूस करते होंगे, आपको बॉल्स, फ़ोन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब आपके पास आती हैं, यू फील अटैच्ड. आप उनसे खेल खेल कर उन्हें तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं. लेकिन अगर पुरानी बॉल भी खो जाए तो आप उसे ढूंढते हो, रोते हो, बार बार उसी जगह पर जाते हो. यार, इस झाड़ी में मेरी बॉल चली गई होगी, शायद वो यहीं मिल जाएगी. नई बॉल्स आ जाएंगी, बहुत सी बॉल्स लाकर खेल लोगे, लेकिन उस बॉल को नहीं भूलोगे. बिकॉज द ग्रीफ कनेक्टेड टू द बॉल कीप्स ऑन डिस्टर्बिंग यू. Hence we can say that the ball is a symbol of worldly possessions which people lose many times in life. बॉल जैसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम खो जाने पर दुखी हो जाते हैं. ये फीलिंग्स रिप्लेस नहीं हो सकती, हमें चेंज नहीं कर सकते. In line 11 to 14, poet is using the word now.
दैट कन्वेज द बॉय इज़ अंडर गोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। 11 to 14 लाइन्स में वही कहता है बच्चा बदल रहा है, रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, सोच रहा है क्या करे। लाइन्स 15 to 18, he wants the child to learn a new experience. His eyes are filled with sadness and a little bit grief and tears. The poet is trying to make the child understand this is the truth of life. He wants the child to learn the sense of responsibility. It is true that losses cannot be controlled always. बहुत बार नुकसान हो जाते हैं, हमारे बिलवेट हमें छोड़ कर चले जाते हैं, दे डाई, अवर पेट्स डाई। हम इन लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनका हम पर जो इफ़ेक्ट आता है उससे कुछ रोक सकते हैं। वी शुड नॉट बी टेकन इट बाय दैम। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि वी शुड बिकम इनह्यूमन, हमें कोई फीलिंग ही नहीं होनी चाहिए, खो गया कोई बात नहीं। नो, फीलिंग का होना एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होना चाहिए, लेकिन वी शुड बी केयरफुल अबाउट अवर थिंग्स। देखिए, जब आप छोटे थे तो आप अपनी चीज़ों का बड़ा ध्यान देते थे, क्लास में लर्न करते थे, ये मेरा रबर है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है। दूसरी लोगों की भी वैसी सेम हो सकती है, लेकिन एज यू ग्रो योर फीलिंग्स अबाउट बिलोंगिंग्स ग्रो लाइटर। आप कोशिश ही नहीं करते बचाने की कोशिश, घर गए बैग फेंका, सामान इधर है उधर है, मम्मा को ब्लेम कर रहे हैं, बिकॉज योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रोइंग dimmer. So the poet wants us to learn the truth of life. Losses are part of our life, but we have to learn to get them control. So I hope you are able to understand the poem now. Thank you so much.